Good morning everyone. Today we will be doing exercise 7.2 question number 4 to 11 we will discuss in this video. So the first question is the price of 1 kg of orange is rupees 45.25. What is the price of 5 kg, 12 kg and 125 kg? So you have been given the value of one thing, means price of one thing is given and you have to find the value of 5 kg, 12 kg and 125 kg of oranges. So how you will find it out? Let me show it to you people. So the first statement will be, as you have been given price, so you can write cost also. So cost of 1 kg of oranges is equals to rupees 45.25. Now you have to find, the first thing that you have to find is cost of 5 kg of oranges. So 5 kg of oranges is equals to rupees 45.25 multiplied by 5. So how you will multiply? I have already told you, 5 5 to 25, 5 down, 2 up, 5 to the 10 plus 2, 12, 2 here, 1 up, 5 5 the 25, 25 plus 1 is 26, 6 down and 2 up, 5 4 the 20, 20 plus 2 is 22. So here 226.25. The cost of 5 kg of oranges rupees 226.25. Now the cost of rupees 12 kg, as we have find the cost of 5 kg, now we will be finding the cost of 12 kg of oranges. For 45.25 will be multiplied by 12. 45.25 is the cost of 1 kg oranges. We will be finding the cost of 12 kg oranges. So 2 5 the 10, 0 here, 5 1 2 5 2 5 the 10, 0 here, 1 up, 2 to the 4 plus 1 5, 2 5 the 10, 0 plus 1, 2 4 the 8 and plus 1 is 9, 1 5 the 5, 1 2 the 2, 1 5 the 5 and 1 4 the 4, normal multiplication and then plus sign. 0 cross is 0, 0 plus 0 is 0, 5 plus 5 is 10, 0 here, 1 up, then you will write 1 plus 2 is 3, 9 plus 5 is 14, 4 here, 1 plus 4 is 5. Now how you will put the decimal? Here you are having 2 digits after decimal. Decimal के बाद में 2 digit हैं, तो यहाँ से भी आप count करोगे 2 digits 1 2 and then you will put the decimal. Here also 2 digits are given, so then you will count from the back. आपको पीछे से count करना है 1 2 and then you will put the decimal. Now you will find the cost of 125 kg of oranges. 125 kg of oranges का price क्या होगा? रुपीज़ 45.25. अगेन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय जितने का आपको निकालना है, 125 का आपको फाइंड आउट करना है, तो 125 से आप मल्टीप्लाई करोगे. 5 5 the 25, 5 here, 2 up, 5 2 the 10 plus 2, 2 here, 1 up, 5 5 the 25 plus 1, 26, 6 here, 2 up, 5 4 the 20, 20 plus 2 is 22, 2 5 the 10, 0 here, 1 here, 2 5 the 10, 0 here, 1 here and 2 to the 4 plus 1, 5, 2 5 the 10, 0 here, 1, 2 4 the 8 plus 1, 9. Okay, then as you are multiplying third number, so you have to put 2 crosses. आपको 2 crosses लगाने पड़ेंगे third step के लिए. So 1 5 the 5, 1 2 the 2, 1 5 the 5 and 1 4 the 4, same number. Put plus sign. So now you have to add 5 plus 0 5, 2 plus 0 is 2, then 6 5 plus 5 is 10, 10 plus 6 is 16, 6 here, 1 up, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5 and then 9 plus 5 is 14, 14 plus 2 is 9 plus 5 is 14, 14 plus 2 is 16, 6 here, 1 up, 1 plus 4 is 5, so 15, 1 plus 4 is 5, 5 लिखते हैं आंसर. अब कहाँ पे लगेगा आपका डेसिमल? 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है, तो पीछे से काउंट करोगे 1 2 एंड देन यू विल पुट द डेसिमल. सो रुपीज़ 5656.25 का आपके 125 ऑरेंजेस आएंगे एंड रुपीज़ 543.00 के आपके आएंगे 12 oranges. Okay. So students, we have got that cost of 5 kg is rupees 226.25 and cost of 12 kg is rupees 533 and then cost of 125 kg is 5656.25. So this is the question number your 4th. Now come on question number 5 that we have done. Anil, a customer care executive, earns 80.45 for each hour of the work. If he works for 8 hours a day and 6 days a week, how much money does he earn in a week? So this is the question. So he is saying customer executive है, he is earning 1 hour के उसको rupees 80.45 मिल रहे हैं. If he is working 8 hours per day,
एक दिन के अंदर वो 8 आवर्स काम कर रहा है, सो 6 डे टोटल वो काम कर रहा है वीक में. सो हाउ मच मनी ही इज अर्निंग इन अ वीक वी हैव टू फाइंड, एंड वीक वी आर हैविंग 6 डे हियर. So now amount earned in an hour, firstly we have to find that how much he is earning per day. Per day कितना काउंट कर रहा है, तो पहले 1 आवर कितने का दिया हुआ है, ₹80.45 का. देन अमाउंट अर्न इन 8 आवर, 8 आवर के अंदर क्योंकि वो 1 डे का पहले निकालेंगे फिर ही हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डेज का मिलेगा. तो 8 आवर्स जो है वो वर्क कर रहा है एक दिन में. सो 80.45 मल्टीप्लाई बाई 8. ठीक है. सो 8 5 द 40, 0 हेयर 4 अप, 8 4 द 48, 48 प्लस सॉरी 4 8 द 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36, 6 हेयर 3 अप, 8 0 द 0 प्लस 3 हेयर, 8 8 द 64, 64 we will write it here. So we have got rupees 643.60 rupees he is earning every day. Okay, now 1 week is equals to 7 days होते हैं. Amount earned in a week. Okay, so here I have done some mistake. Here I have to find the cost of 6 days. 6 days की आपको find out करनी थी, 6 days a week. So here we will write 6 days a week. Amount earned in a 6 days. So let me do it the correction. Okay everyone, if you have done this question according to 7 days, it's okay. 7 days के हिसाब से कर लिया आप. 6 days का अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो 6 days से आप 6 days के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अमाउंट अर्नड इन अ वीक मैं 7 के हिसाब से आपको सॉल्व कर रही हूँ. अगर आपको क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है तो आप 6 के हिसाब से सॉल्व कर लेना प्लीज़. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रही. 7 0 द 7, 7 6 द 42, 2 हेयर 4 अप, 7 3 द 21, 21 प्लस 4 इज 25, 5 हेयर 2 अप, 7 4 द 4 7 द 28, 28 प्लस 2 30, 0 हेयर 3, 7 6 द 42, 42 प्लस 3 इज 45. ओके, सो नाउ डेसिमल, फ्रॉम वेयर वी विल पुट द डेसिमल. डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होंगी, तो 1 2 और आप डेसिमल पुट कर दोगे. सो अकॉर्डिंग टू दी 7 डेज उसका अर्निंग होगी रुपीज़ 44,505.20. मनी विल बी अर्न इन अ वीक. ओके, अगर 6 डेज का निकालोगे तो मनी अर्न जो है वो कम हो जाएगी. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दी 7 डेज. यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू 6 डेज ऑल्सो. ओके, 6 डेज का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ना क्वेश्चन नंबर 6. A farmer uses a diesel generator to irrigate his field. The generator consumes fuel at the rate of 1.3 लीटर पर 30 मिनट्स. 30 मिनट के अंदर 1.3 लीटर जो है फ्यूल यूज़ हो रहा है. इफ़ इट रन्स फॉर 5 आवर्स डेली, अगर हर रोज़ 5 आवर्स के लिए डेली रन कर रहा है, फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ डीजल इट कंटिन्यूज कंज्यूम एवरी डे कितना कंज्यूम करेगा. सो ये आपको फर्स्टली 1.3 लीटर जो है 30 मिनट्स में यूज़ हो रहा है, तो पहले आपको 1 आवर कंप्लीट करना पड़ेगा. तो 1.3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यू विल गेट 1 आवर कंजम्पशन आ जाएगी आपके पास. 1 आवर के अंदर कितना डीजल जो है कंज्यूम कर रहा है. अब उसके बाद में इफ़ इट रन्स फॉर 5 आवर्स, अगर 5 आवर्स रन कर रहा है, 5 आवर्स रन कर रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट दी आंसर. सो 1.3 को पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 आवर की वैल्यू आ जाएगी, 1 आवर में कितना कंज्यूम हो रहा है. उसके बाद में 5 आवर्स के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना. सो दिस वन वॉज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है. देन मारिया परचेजेस 5.35 kg ऑफ बटर टू मेक अ बटर कुकीज़. 5.35 kg जो है बटर जो है यूज़ किया जा रहा है बटर कुकीज़ बनाने के लिए. शी मेक्स 1000 कुकीज़ यूजिंग 2.5 ग्राम ऑफ बटर फॉर ईच कुकी. वो हर कुकी के लिए 2.5 ग्राम जो है 2.5 ग्राम जो है बटर यूज़ कर रही है. हाउ मच, और 1000 टोटल कुकीज़ उसने बनाई है. हाउ मच बटर इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर मेकिंग द कुकीज़. कितना बटर बचेगा सारी कुकीज़ बनाने के बाद में. हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, यू हैव टू नाउ फर्स्टली यू विल राइट टोटल क्वांटिटी ऑफ बटर इन 5.35 kg है. ओके, देन क्वांटिटी ऑफ बटर यूज्ड इन 1 कुकी. 1 कुकी के अंदर 2.5 ग्राम्स जो है यूज़ हो रहा है. ओके, सो फर्स्टली क्वांटिटी ऑफ बटर यूज इन 1000 का कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 2.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होएगा. 2.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो इट विल बी 0 0 आपको पीछे पुट करना पड़ेगा. तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप आएगा एंड इट विल बी यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा. फिर किसके बाद में आ जाएगा 2500 के बाद में डेसिमल आ जाएगा आपका. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 2500 ओनली. अब 2500 को आपको 1 kg 1/1000 ग्राम जो इक्वल टू 1 kg होता है, तो kg में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन में kg ऊपर दिया हुआ है. सो 2500 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 25/10 जो है वो क्या होता है 2.5 kg होता है.
ठीक है, तो अब आप 2.5 kg किस में से माइनस करोगे, 5.35 kg में से माइनस करोगे, ताकि हमें पता चल जाए कि क्वांटिटी ऑफ बटर लेफ्ट इज़ 5.35 माइनस 2.5, 5.35 में से 2.5 माइनस करेंगे. So now firstly we have to make it like decimal, so 0 we have to put after 5, so 5 minus 0 is 5, 3 minus 5 not possible, take 1 from here, 13 minus 5 is 8, 4 minus 2 is 2, so it will be 2.85 kg जो है. so quantity of butter left is 2.85 kg जो आपका butter left करेगा, इतना बचेगा. okay, so the next part that we have done today is question number 7 we have started, question number 8 we have started with. So a jeweler purchases a gold bar of rupees 1 kg. From the gold bar he makes 10 small bars. अब उसी gold bar में से 10 small bars बने हैं, that is weight of 12.5 grams each. 12 necklaces बने हैं, weight of 55.57 gram each, and 24 पेयर्स ऑफ इयरिंग्स हैं, दैट इज़ 5.6 ग्राम ईच. तो ये सारी चीज़ें बनी हैं, सिर्फ 1 किलोग्राम को इसको इसके तोड़ के ये सारी चीज़ें बन गई हैं. सो हाउ मच गोल्ड इज़ लेफ्ट विद हिम. अब उसने पूछा है कितना गोल्ड बचा है. ओके, सो फर्स्टली वी विल राइट द टोटल गोल्ड जो उसके परचेज किया बाय द ज्वेलर, दैट इज़ 1 kg. मैंने 1 kg को 1000 ग्राम्स में चेंज कर लिया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ग्राम्स में दी हैं. सो इट इज़ ईजी टू चेंज दिस वन रैदर देन चेंजिंग ऑल दिस थिंग. So it is 1000 gram now. So now firstly weight of one small bar आपको given है, that is 12.5 grams. This is 12.5 grams. Now weight of 10 small bars, weight of 10 small bars का कितना होता है. वेट ऑफ 10 स्मॉल बार्स, वेट ऑफ 10 स्मॉल बार्स कितना होगा, वेट ऑफ 10 स्मॉल बार्स होगा 10 से मल्टीप्लाई करके. 12.5 है आपके पास में, 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो आप टोल्ड यू डेसिमल को जंप करवाना पड़ता है राइट साइड पे. 1 0 है तो एक बार जंप होगा, 2 0 है तो 2 बार जंप होगा. तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10, एक बार जंप कराओगे तो 0 पीछे आ जाएगा, पॉइंट पीछे आ जाएगा, एंड द आंसर विल बी 125.0. ठीक है, 125.0 आंसर आएगा. दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज नॉट देयर. 12.50 ग्राम्स आ जाएगा. सो अब वेट ऑफ वन नेकलेस कितना गिवन है, 55.57 ग्राम्स गिवन है. वेट ऑफ 12 नेकलेसेस कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 55.57 ग्राम हो जाएगा. सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई 2 7 द 14, 1 हेयर, 2 5 द 10, 1 हेयर, 1 हेयर, 2 5 द 10, then again 1 here, 1 up, 2 5 the 10 and 11 down. So then you will write 1 7 the 7, 1 5 the 5, 1 5 the 5, 1 5 the 5. Then you have to add 4 plus 0 is 4, 1 plus 7 is 8, 1 plus 5 is 6, 1 plus 5 is 6 and 1 plus 5 is 6. So now where you will put the decimal now, दो decimal के बाद 2 digits हैं, as you can see here. Again here also you will count from here 1 2, 2 digits होंगी and decimal you will put it here. So 666.84 grams के आपके 12 necklaces बनेंगे. Okay, then you are having, I have written here also. Now weight of one pair of earring is 5.6 gram. weight जो है एक pair of earring का 5.6 gram है. So weight of 24 pairs of earring कितना होगा. So 5.6 को 24 से आपको multiply करना पड़ेगा. So now 4 multiply by 6 is 24, 4 here, 2 up, 4 5 the 20, 22, then 2 6 the 12, 2 here, 1 up, 2 5 the 10 and 1 plus 11, 4, 2 plus 2 is 4, 2 plus 1 is 3 and 1. ना डेसिमल, एज डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है तो यहाँ से भी पीछे से एक डिजिट काउंट करोगे और डेसिमल लगाओगे. सो टोटल वेट जो है 10 स्मॉल बार्स का, 12 नेकलेसेस का एंड 24 पेयर्स ऑफ इयरिंग्स का, सबको प्लस करेंगे अब हम, बिकॉज आपको टोटल 1000 में से निकालना है कि कितना बचा है. ठीक है, 1000 में से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितना बचा है. सो दैट फॉर दैट वी हैव टू प्लस ऐड करना पड़ेगा. पहले इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. सो 4 plus 0 is 4, 8 plus 4 plus 0 is 2, 12, 1 here, then 6 plus 4 is 10, plus 1 plus 5, 16, 6 here, 1 up, 6 plus 4, 10, 10 plus 12, 2, 12, 2 plus 1, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 plus 6 plus 1 plus 1, 9, 1 plus 6 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. So 926.24 grams आपका आ गया. क्या कहते हैं, इतना उसने यूज़ कर लिया. गोल्ड लेफ्ट विद हिम 1000 ग्राम्स को 926.24 से माइनस करोगे. सो 10 0 minus 4 इज़ नॉट पॉसिबल. 10 आप कैरी लोगे. 10 minus 4 is 6, 9 minus 2 is 7, 9 minus 6 is 3, 9 minus 2 is 7, 9 minus 9 is 0 एंड 0 का 0. पॉइंट की जगह पे पॉइंट की प्लेसमेंट नहीं करनी, पॉइंट जहाँ पे लगा है वहीं पे लगेगा. सो 73.76 ग्राम जो है गोल्ड इज़ लेफ्ट विद ज्वेलर. ज्वेलर के पास में इतना गोल्ड बचेगा.
Next question 9th I have given you homework. The quantity of orange juice is 0.45 लीटर. अब क्वांटिटी एक केन के अंदर 0.45 लीटर है. देयर आर 18 सच केन्स. एक कार्टन के अंदर 18 सच जो है केन्स हैं. तो 0.45 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाउ मच जूस इज देयर इन 18 सच कार्टन्स. तो कितना जूस होगा इस 10 कार्टन्स के अंदर, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो पहले आपको 0.45 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 1 कार्टन का क्वांटिटी पता चल जाए. उसके बाद में आपको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जो भी आंसर आएगा, सो दैट आपको 10 कार्टन्स की क्वांटिटी पता चल जाए. अब उसके बाद में द वेट ऑफ बुक इज 0.31 kg. अ बैग इज 5 टाइम हैवियर देन द बुक एंड अ चेयर इज 3.6 टाइम हैवियर देन द बैग. व्हाट इज द वेट ऑफ द चेयर. अब वेट जो है आपको बुक का कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है बुक का 0.31 kg. तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी 0.31 kg. द वेट ऑफ बुक इज 0.31 kg. वेट ऑफ द बैग इज 5 मल्टीप्लाई 0.31 kg. आपको क्योंकि उसने बोला कि 5 टाइम्स भारी है आपका बैग बुक से, सो इसलिए यू विल मल्टीप्लाइड विद 5. 5 का प्राइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 हेयर 1 अप. सो 1 इधर आ जाएगा. दो डेसिमल है, दो डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स हैं 1 2. तो यहाँ से पीछे से काउंट करोगे आप 1 2 एंड पॉइंट पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर. ओके, देन योर नेक्स्ट पार्ट इज दैट देयर इज वन मोर थिंग. अ चेयर इज 3.6 टाइम्स हैवियर देन द बैग. अब चेयर जो है वो 3.6 टाइम्स ज़्यादा हैवी है देन द बैग. ठीक है, तो अब आपको चेयर का वेट निकालना है एग्जैक्टली. सो वेट ऑफ चेयर कितनी हो जाएगी, 3.6 मल्टी टाइम्स हैवियर देन द बैग. 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.55 kg. ये बैग का वेट आया आपका. सो 1.55 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. सो क्या होगा, 0 का अब 6 5 द 30, 0 हेयर 3 अप, 6 5 द 30, 3 हेयर 3 अप, 6 1 द 6 प्लस 3 9. ओके, 3 5 द 15, 5 हेयर 1 हेयर, 3 5 द 15, 1 प्लस 16, 1 प्लस हेयर, 3 1 द 3 प्लस 1 4. ऐड करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 3 प्लस 5 इज 8, 9 प्लस 6 इज 15, 5 हेयर 1 हेयर, 1 प्लस 4 इज 5. ना डेसिमल कहाँ पे लगेगा, प्लीज़ लुक हेयर, ध्यान से आपको देखना है कैसे करोगे डेसिमल. आपको डेसिमल पुट करना है. सो 1 2 यहाँ पे दो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में और यहाँ पे 1 है. सो 2 प्लस 1 3 हो गया. तो पीछे से करोगे 1 2 3, 3 डिजिट्स आएंगी और डेसिमल आएगा. सो 5.580 kg आ जाएगा. सो वेट ऑफ चेयर इज 5.58 kg होगा. 5.588 kg होगा. Now in a speed eating competition, Sana eats banana every 25 seconds. स्पीड जो है ईटिंग कॉम्पिटिशन में सना को बनाना चाहिए, हर 25 सेकेंड में बनाना खा रही है. अब उसके बाद में इफ़ शी ईट्स 12 बनाना, उसने टोटल 12 बनानास खाए हैं, तो कितना टाइम लगा. सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 को 25 से एंड देन यू विल गेट द टाइम. But if possible change it into minutes also. 1 minute is equals to 60 seconds. So आपका minutes में भी ये time change हो जाएगा and it's very quite easy question. So this one and this one, question number 9 and 11 I have given you homework. So by this we have completed exercise 7.2. I hope that there will be no doubt in these questions. Thank you everyone.